So today also I'm going to take up the same part that I did earlier, the same kind of numerical that I did in my previous video. That is the calculation of order of reaction, calculation of rate law, determination of rate law, how to determine rate law, rate constant, and all these will be determined based on the method known as initial rate method. And about initial rate method, I explained in my previous video ki how is this method done, how is this method used to determine the order of reaction, rate law and rate constant. Now I have taken a few numericals on the same. मैंने बताया था कि हम इसमें suppose there are two reactants, what we do, we carry out 3-4 experiments, like 4 times the same experiment with different concentrations of A and B. But what we do is हम किसी एक एक्सपेरिमेंट में किसी दो एक्सपेरिमेंट में सॉरी हम एक सपोज ए की कॉन्सेंट्रेशन सेम रखते हैं एंड इफ वी चेंज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बी, then we find out what is its impact on the rate of reaction. Then in next experiments, like next other some other when we record some other values, what we do, we make the concentration of B constant, the concentration of B is kept constant and concentration of A is changed, and then rate of reaction is noticed कि B को कांस्टेंट रख के A की जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से क्या रेट पे इफेक्ट आया है या नहीं आया है. Depending upon that, we calculate the order of reaction, because I told you when we discussed rate law in the very beginning of this chapter that रेट लॉ जो होता है वो बताता है कि जो आपका रेट है रिएक्शन का वो एक्चुअली कितनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे रिएक्टेंट्स के डिपेंड करता है. ठीक है, जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि जितने मोल्स हमने रिएक्टेंट के लिए, जितने भी मोल्स लिए हमने एनी ऑफ काइंड ऑफ रिएक्टेंट्स, लाइक 1 है 2 है 3 है, तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो सभी मोल्स पे डिपेंड करता है. जबकि रेट लॉ कहता है एक्चुअली इट इज दैट रेट डिपेंड्स अपॉन दी कितने पे डिपेंड करता है. इट माइट नॉट बी जितने मोल्स हमने लिए, इट माइट बी द सेम एज वी टेक और इट माइट बी मोर देन दैट. मतलब मैं एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ. सपोज 2A प्लस B गिव्स यू सम प्रोडक्ट है, ये रिएक्शन है, राइट. सो लॉ ऑफ मास एक्शन हमारा कहता है कि रेट इज इक्वल टू K, which is rate constant, A raised to power 2 and B raised to power 1 to their stoichiometric coefficient. While जो आपका रेट लॉ है वो कहता है नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. इट माइट डिपेंड अपॉन ऑल द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ A and all the concentration terms of B, but it might not depend. अब अल्फा की वैल्यू can be 2, it can be less than 2, it can be more than 2. In the same way, beta की value can be 1 and can be less than or more than 1. So what actually is determined, मतलब हमें कैसे पता चलता है कि कितनी concentration terms पे डिपेंड कर रहा है, ये हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता करते हैं, जिसमें से एक मेथड है हमारा इनिशियल रेट मेथड, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि हम एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को, एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रख के दूसरे रिएक्टेंट जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके देन वी सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. तो ये सब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था. एंड नाउ again I have explained the same thing. So I guess we should start with the क्वेश्चन पार्ट्स, बिकॉज इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, है ना. तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं भी देखा है, आई विल शेयर द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो थ्रू दैट. और अभी आप मेरे साथ ये न्यूमेरिकल जो है आप प्रैक्टिस कीजिए कि हम कैसे इसको यूज करके हम कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड अदर थिंग्स जो भी हमें पूछी है वो निकालेंगे. See, so in this reaction, A and B are two reactants. They react to form products, and initial concentration of A and initial concentration of B is given, and depending on what is their concentration, rate of the reaction is given in each case. Like पहले 0.1 है A की, B की 1 है, तो 2.1 into 10⁻³ है rate, and then depending upon whatever concentration term they have taken, हमारा जो rate है वो हमें गिवन है. अब मैंने क्या बताया था, हमें इसमें क्या निकालना, सॉरी, डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड विद रिस्पेक्ट टू बी. ऑर्डर वही होता है ना कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे जो है हमारा रेट ए की डिपेंड कर रहा है और बी की कितनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. नाउ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जब हम ए और बी का निकाल लेंगे तो उसको ऐड करके आ जाएगा आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. अब वो कैसे निकालना है, इनिशियल रेट मेथड को कैसे यूज करना है,
Now there are two ways that I told you in my previous video also. मैं वो दोबारा से वो दोनों ways करवा रही हूँ यहाँ पे एक numerical में, but in all the numericals I will be using only one method. So first method is, what is the first method? Let us take up that. फर्स्ट मेथड है कि हम इस डेटा को अच्छे से ऑब्जर्व करें. हम ये देखें कि कोई दो हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट्स, देयर आर 3 ट्रायल्स, देयर हैव बीन 3 रन्स, यहाँ लिखा हुआ ना 3 रन्स हैं. तो हम कोई दो रन्स या दो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको देखेंगे, उनके डेटा को एनालाइज करेंगे. हम देखेंगे कि जो दो डेटा हैं उनमें से अगर हमने किसी दोनों डेटा में किसी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा है और दूसरे की को चेंज किया है तो उससे रेट पे क्या इफेक्ट हुआ है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, फ्रॉम फर्स्ट टू वैल्यूज यानी कि 1 and 2 जो आपकी हैं उनसे क्या पता चल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट है 1 and 1, 1.0 मोलर एंड 1.0 मोलर. सो बी की कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज द वैल्यू 0.0, सॉरी नॉट 0.0, it is 1.00 molar, right? Or concentration of A has been changed from what to what? From 0.10 molar to 0.20 molar. कितने टाइम चेंज किया है? डबल किया, यानी कि 2 टाइम्स हमने A को मतलब डबल कर दिया, बढ़ा दिया, 2 टाइम्स कर दिया. उससे रेट पे क्या इफेक्ट आया है, अब वो निकालते हैं. नाउ रेट ऐसा हुआ कि जो हमारा रेट था वो पहले था 2.1 into 10 raised to power minus 3 which became 8.4 into 10 raised to power minus 3. तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे 8.4 into 10 raised to power minus 3 को by 2.1 into 10 raised to power minus 3, you will find out ये क्या आ जाएगा 4. तो यानी कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गया जब आपने ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, कीपिंग बी की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट. सो दिस शोज देयरफॉर rate is proportional to 2 concentration terms of A, मतलब square of A, right? डबल करने पे 4 टाइम्स हुआ है, that's why rate is proportional to 2 concentration terms of A. Now coming to other experiments जिसमें हमने A को कांस्टेंट रख के हमने देखना है कि हमने B को चेंज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इंपैक्ट आया. नाउ फ्रॉम लास्ट 2 वैल्यूज लाइक 2 and 3, इसमें ए की कॉन्सेंट्रेशन को 0.2 एंड 0.2 ही रखा है, जबकि बी की कॉन्सेंट्रेशन को देखिए डबल किया है हमने, 1 से 2 किया है, बट रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स दी सेम. दिस शोज कि रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे. सो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वैल्यूज क्या मिल रहा है हमें, A is kept constant and इसकी कांस्टेंट क्या हमने वैल्यू रखी है A की, ये रखी है हमने 0.20 मोलर, जबकि B को हमने चेंज किया है फ्रॉम 0.10 मोलर, नॉट सॉरी 0.10, सॉरी 1.00 मोलर to 2.00 मोलर, यानी कि डबल किया है. And what does this have, I mean what impact does this has on rate of reaction? Rate of reaction 8.4 into 10 raised to power minus 3 से 8.4 into 10 raised to power minus 3, यानी कि no change, कोई change नहीं आया है. Therefore this shows that rate of reaction is independent of the concentration of this. तो यहां से रेट लॉ क्या बन जाएगा, अकॉर्डिंग, therefore according to the rate law, rate of reaction will be equal to rate constant, या हम पहले ये भी कर सकते हैं proportional to A का स्क्वायर and B का 0, or we can write it proportionality sign हटा के rate constant into this. So this is the rate law. और हमें क्या बोला था इन्होंने, हमें तो इन्होंने सिर्फ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा था विद रिस्पेक्ट टू A and with respect to B. So therefore order of reaction with
respect to A is 2, with respect to B is 0, एंड हमें बोला था ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, एंड देयरफॉर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 2 + 0, दैट इज 2। तो एक तो हो गया हमारा ये मेथड कि इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो निकालते हैं। अब हम एक दूसरा मेथड देखते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड मेथड, कुछ बुक्स में ये यूज किया हुआ है, कुछ बुक्स में प्रीवियस वन जो मैंने कराया यूज किया है। यू कैन यूज एनी ऑफ देम, आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। आप अपने उसको टैली करने के लिए भी दोनों मेथड्स एग्जाम में यूज कर सकते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ठीक है। अब सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड ऐसा है कि हमें ये जो है, जो तीनों रेट्स, तीन रन्स किए, तीन ट्रायल्स किए, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें तीनों का रेट दिया है। इसको हम R1 मान लेते हैं। अगर सपोज दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, और हमें ये कॉन्सेंट्रेशंस दी हैं तीनों केसेस में, तो अगर हम ये मान लें कि लेट अल्फा बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A and beta be the order of reaction with respect to B, then हम रेट लॉ क्या लिखेंगे? therefore रेट लॉ क्या बन जाएगा? रेट लॉ will be that rate of reaction is equal to K into concentration of A raised to power alpha, concentration of B raised to power बीटा। अब हम इसी को यूज करके आपके हमारे अल्फा एंड बीटा निकाल लेंगे। वो कैसे? हमारे पास तीन वैल्यूज है, वी हैव 3 रन्स, तो हम उन्हीं रन्स को, उनकी वैल्यूज को यूज करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जो R1 था, दैट वाज, R1 क्या था? R1 था, क्या वैल्यू थी R1 की? रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट केस में 2.1 इंटू 10⁻³ सो 2.1 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू K। इस केस में A की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? 0.1 एंड B की क्या थी? 1। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.1 रेज टू पावर अल्फा एंड सॉरी ये थी 1 रेज टू पावर बीटा। अब R2 क्या था? सेकंड जो एक्सपेरिमेंट किया उसका रेट ऑफ रिएक्शन था 8.4 इंटू 10⁻³ एंड A और B की कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 एंड 1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये हो गया 8.4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू K इंटू 0.2 रेज टू पावर अल्फा एंड ये है 1 रेज टू पावर बीटा। एंड थर्ड जो रेट था, यानी कि थर्ड ट्रायल था, उसमें रेट है 8.4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू K एंड अल्फा एंड A एंड B की कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं 0.2 रेज टू पावर दिस एंड 2 रेज टू पावर दिस। So we get 3 equations, first, second and third. Now what we will do, पहले हम अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट 2 इक्वेशंस यूज करेंगे। सो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁻³ अपॉन 8.4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू K इंटू क्या था पीछे? 0.1 रेज टू पावर अल्फा, 0.1 रेज टू पावर अल्फा, 1 रेज टू पावर बीटा अपॉन K, ये था 0.2 रेज टू पावर अल्फा एंड 1 रेज टू पावर बीटा। ये कैंसल आउट हो गया, ये भी कैंसल आउट हो गया, ये आ गया 1/4, K से K कैंसल हो गया, इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 0.2 क्या बन जाएगा? 1/2 रेज टू पावर अल्फा। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर, यहां से क्या आ गया? अल्फा इज इक्वल टू 2। देयरफॉर ए के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर आ गया 2, है ना? यही बोला था। अब हम करते हैं सेकंड एंड थर्ड को डिवाइड बीटा निकालने के लिए, ठीक है। सो डिवाइडिंग सेकंड बाय थर्ड, इसमें और रेट था 8.4 इंटू 10⁻³, नीचे भी रेट था 8.4 इंटू 10⁻³ एंड राइट साइड पे थी, सॉरी राइट साइड पे वैल्यूज थी K इंटू
into 0.1 raised to power alpha, not 0.1, I think 0.2 था, 0.2 raised to power alpha, 1 raised to power beta upon k into 0.2 raised to power alpha, and ये थी यहाँ पे 2 raised to power beta. एक बार कंफर्म कर. ओके 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 ओके, जस्ट अ सेकेंड. यस, तो ये था हमारे पास, यस यही थी वैल्यूज. तो अब यहाँ से ये कैंसल आउट हो गया, के से के कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, इधर आ गया 1 इज इक्वल टू 1/2 रेज्ड पावर बीटा. हमें बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो log 1 इज इक्वल टू क्या करेंगे, उसका भी इधर भी लॉग ले लेंगे. जस्ट अ सेकेंड. तो इधर भी लॉग ले लेंगे, ये बन जाएगा बीटा log 0.5. now log 1 is 0, so this is equal to बीटा log 0.5. यहां से बीटा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा आ गया 0. सो आ गया विद रिस्पेक्ट टू, ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर 2 एंड विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर 0. तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया, 2 + 0 2. यही हमने पहले निकाला था और यही हमने अब इस मेथड से डिटरमिन किया है. सो आई थिंक आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी, अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम दोनों में से कोई भी मेथड यूज करके वी कैन डिटरमिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच एवर यू फाइंड कन्वीनियंट. You can use any one of them in your numerical, while whenever you try them you can use any one of them. अब चलिए इसके साथ का और एक्सपेरिमेंट अभी और न्यूमेरिकल करते हैं. The following data were obtained for the reaction 2A plus 2B gives you products. 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है ए की, 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ली है बी की, यानी कि 3 बार एक्सपेरिमेंट किया है और तीनों बार रेट निकाला है. हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रेट लॉ इक्वेशन निकालनी है फॉर द रिएक्शन. अगेन वही है, कोई भी एक मेथड फॉलो कर लीजिए. मैं फर्स्ट मेथड यूज कर रही हूँ. सो उसके लिए क्या देखा, मैं पहले फर्स्ट 2 एक्सपेरिमेंट्स देख रही हूँ. फर्स्ट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, concentration of B is constant and what is the value, 0.1 है दोनों केस में, and concentration of A has been changed from 0.1 to 0.2, यानी कि डबल किया है. and what is its impact on rate of reaction, वो हमें देखना है. so rate हमारा जो है वो हुआ 0.005 से 1 सेकेंड, ये हुआ 0.005 से 0.02. तो ये कितने टाइम्स हो गया, 0.02 डिवाइडेड बाय 0.005, दिस इज इक्वल टू 4, यानी कि दिस हैज चेंज 4 टाइम्स. अब अगेन डबल करने पे अगर 4 टाइम्स हो रहा है तो दैट मींस देयरफॉर रेट जो है वो ए की 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म यानी कि स्क्वायर पे डिपेंड करता है. राइट, ये आ गया. अब अगला देखते हैं, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं. अब इसमें सेकंड और थर्ड में ए की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा है, बी की कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स किया है, तो हमारा रेट जो है वो भी 3 टाइम्स हो गया है. तो इसका मतलब रेट जो है वो बी की से डायरेक्टली 1 कॉन्सेंट्रेशन टर्म से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब यहां लिख लेते हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट्स. what is it, it says A concentration of A is constant and कितनी है वो, constant है 0.02, while concentration of B has been changed from 0.01 to 0.03, यानी कि 3 times किया है. and what impact does this have on the rate of reaction, it is 0.02 से 20 से 0.060, यानी कि 3 टाइम्स हो गया रेट भी. सो दैट मीन्स हमारा जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की कॉन्सेंट्रेशन, 1 कॉन्सेंट्रेशन टर्म. सो दिस सो यहां से रेट क्या बन गया, प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर एंड बी की 1 पावर. therefore रेट लॉ इक्वेशन बन गई रेट इज इक्वल टू के इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी. और हमसे इन्होंने क्या पूछा था,
हमसे इन्होंने आई गेस यही पूछा था। और क्या पूछा था इन्होंने? जस्ट अ सेकेंड, वीडियो क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो गया 2+1 3। ऑल्सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, सो 2+1 दैट इज 3। तो हमने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी निकाल लिया इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, 8th, the following data were obtained for the reaction true NO2 give plus F fluorine gives you NO2F। 3 कॉन्सेंट्रेशन NO2 की ली है, 3 फ्लोरीन की ली है एंड रेट डिटरमिन किया है। डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड राइट द रेट लॉ इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। सेम एग्जैक्टली जिससे पहले किया वो डिटरमिन करना है, लेकिन अब इसमें क्या है, जो मैं फर्स्ट मेथड अभी यूज कर रही थी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट टू डेटा में फ्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा है इन्होंने, और इसकी चेंज की है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जिसमें ए की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा हो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बी की कॉन्सेंट्रेशन चेंज की हो। देखिए हर जगह कॉन्सेंट्रेशन जो है NO2 की, जो है, मैं ए बी बोल रही हूँ सॉरी, NO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वो हर जगह चेंज हो रही है। फ्लोरीन की 2 जगह सिमिलर है, 1 जगह चेंज हो रही है। तो फ्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रख के हम NO2 की चेंज हो रही है तो हम NO2 के विद रिस्पेक्ट टू तो निकाल सकते हैं ऑर्डर, लेकिन अगर हमें फ्लोरीन के विद रिस्पेक्ट टू निकालना है तो हमें चाहिए कि NO2 की कॉन्सेंट्रेशन कहीं तो कांस्टेंट रखी हो, जबकि ये नहीं की है। तो जो मैंने फर्स्ट मेथड यूज कर रही हूँ, अब मैं वो यूज नहीं करूंगी, अब आई विल यूज सेकेंड मेथड, जो मैं रेट लॉ इक्वेशन लिख के अल्फा बीटा मान के ऑर्डर जो मैं करती हूँ, आई विल यूज दैट इन दिस केस। सो लेट अल्फा बी द order with respect to nitrogen dioxide and beta be the order with respect to fluorine, right? तो that means therefore rate law equation क्या बन जाएगी? rate law equation क्या बन जाएगी? ये बनेगी rate is equal to, if k is the rate constant, then NO2 की पावर अल्फा एंड फ्लोरीन की पावर बीटा। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 रेट्स हैं, R1, R2, R3, और हम इन सबके लिए क्या लिखेंगे? रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे। सो लेट अस राइट रेट लॉ equation for all 3 values, 3 experiments, 3 values। ठीक है, सो फर्स्ट के लिए R1 जो है हमारा, यानी कि वो क्या था रेट हमारा, इट वाज 6 into 10 raised to power -3। तो ये लिख लेते हैं 6 into 10 raised to power -3 is equal to K into NO2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.2, 0 कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो यहाँ पे 0.2 रेज टू पावर अल्फा एंड फ्लोरीन की है 0.05, सो रेज टू पावर बीटा। एंड R2 क्या हो जाएगा? R2 था, मतलब सेकंड जो रेट आया है रिएक्शन वो आया है 1.2 into 10 रेज टू पावर -2, दिस इज इक्वल टू K इंटू सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन है 0.4 NO2 की और इसकी है 0.05 रेज टू पावर बीटा। अब R3 देखते हैं, R3 थर्ड रेट था 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की 0.8 एंड इसकी है 0.1 रेज टू पावर बीटा हो गया ये। सो हमारे पास आ गई अगेन 3 इक्वेशंस। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे। What will happen? 6 into 10 raised to power -3 upon 1.2 into 10 raised to power -2 is equal to K into 0.2 raised to power alpha 0.05 raised to power beta upon K into
0.4 रेज टू पावर अल्फा एंड 0.05 रेज टू पावर बीटा। ये कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, और ये जो है आएगा कैंसल आउट होके, ये भी आ जाएगा 1/2 ना। 0.2/0.4 इज इक्वल टू 2/4, यानी कि दिस इंप्लाइज 1/2 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर अल्फा, और अल्फा की वैल्यू आ गई 1। देयरफॉर रेट जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, सेकंड को थर्ड से डिवाइड करेंगे, सेकंड को थर्ड से डिवाइड करेंगे जैसे हम पहले करते हैं। सो ये आएगा 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -2 अपॉन 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर -2। दिस इज इक्वल टू k इंटू 0.4 रेज टू पावर अल्फा, 0.5 रेज टू पावर 0.05 रेज टू पावर बीटा, k इंटू 0.8 रेज टू पावर अल्फा एंड 0.1 रेज टू पावर बीटा। ये तो हो गया इससे कैंसिल, ये कैंसिल होके आ गया 1.2 और ये कैंसिल होके आ गया 1/4। तो इक्वेशन बन गई हमारी 1/4 इज इक्वल टू 0.4 रेज टू पावर अल्फा इंटू 0.05 रेज टू पावर बीटा अपॉन 0.8 रेज टू पावर अल्फा इंटू 0.1 रेज टू पावर बीटा। अब ये क्या बन जाएगा 4/8 रेज टू पावर अल्फा, और ये बन जाएगा 0.05/0.1 हो जाएगा 5/10 रेज टू पावर बीटा। अल्फा की वैल्यू हमने 1 निकाली थी, तो दिस इज इक्वल टू 1/2, अल्फा की वैल्यू 1 पुट करने के बाद, और ये हो जाएगा 1/2 रेज टू पावर बीटा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। दिस इंप्लाइज 1/2 is equal to 1/2 raised to power beta. This implies beta is equal to 1, यानी कि rate of reaction is directly proportional to 1 concentration term of fluorine। तो हमें क्या बोला था, order of reaction क्या हो जाएगा इसका 2। therefore rate law equation हो जाएगी, पहले तो वो लिख लेते हैं, rate law equation will be what, rate is equal to k into nitrogen dioxide की power 1 up into fluorine की भी power 1, and order of reaction will be 1 plus 1 2। तो इस न्यूमेरिकल को हमने सेकेंड मेथड से किया है। सो यहाँ पे यही मेथड अप्लाई होगा, तो आप इसको यूज करके ऐसे आप किसी भी और न्यूमेरिकल को कर सकते हैं, बट इस केस में आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव 2 मेथड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन करते हैं। दी रेट्स ऑफ अ रिएक्शन स्टार्टिंग विद इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 into 10 रेज टू पावर, ओ गॉड ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है, ये है 1 into 10 रेज टू पावर -3 मोलर are equal to 2.40 into 10 raised to power -4 moles per second and 0.6, ये भी गड़बड़ है, ये जो वैल्यू है ये है 0.6 into 10 raised to power -4 moles per second। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट एंड आल्सो द रेट कांस्टेंट। अब मान लेते हैं कि हमारा जो रिएक्टेंट है, मानना क्यों, हम लिख ही लेते हैं, रिएक्टेंट है हमारा जो लेट इट बी ए। ठीक है, तो इसका मतलब जब ए की कॉन्सेंट्रेशन है 1 into 10 रेज टू पावर -3, तो रेट क्या आ रहा है, रेट आ रहा है 2.4 into 10 रेज टू पावर -4 मोल्स पर सेकेंड। और जब कॉन्सेंट्रेशन है, आई एम सॉरी, पहले कॉन्सेंट्रेशन है 2, सेकेंड है कॉन्सेंट्रेशन 1 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मोलर, तो रेट आ रहा है 0.6 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मोल्स पर सेकेंड। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे हमें क्लियर पता चल रहा है कि जब हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर रहे हैं, 2 से 1 कर रहे हैं, तो ये जो है 1/4 टाइम्स हो रहा है, ऐसे दिख रहा है। नहीं तो आप इसको उल्टा कर लीजिए, और यू कैन राइट इट 1 into 10 रेज़ पावर -3 m
है तो रेट है 0.6 इंटू 10⁻⁻4। जब ये है 2 इंटू 10⁻⁻3 तो रेट है 2.4 इंटू 10⁻⁻4। तो जब हम डबल कर रहे हैं तो जो ये रेट है ये हो रहा है 4 टाइम्स। इधर वे कर सकते हैं, हाफ कर रहे हैं तो 1/4 हो रहा है। आप ऊपर उसको लिख लीजिए, नीचे दूसरी कॉन्सेंट्रेशन लिख लीजिए। सेकंड कॉन्सेंट्रेशन जो है 2 इंटू 10⁻³ मतलब उसको बना के नीचे सेकंड, उसको सेकंड बोल दीजिए और इसको फर्स्ट बोल दीजिए 1 इंटू 10⁻3। ये क्लियरली शो कर रहा है कि जो आपका ये है रेट है वो जब हम कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो वो 4 टाइम्स हो रही है। जब हम कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर रहे हैं तो रेट भी 1/4 हो रहा है। सो देयरफॉर rate is proportional to a की पावर 2. This implies rate is equal to k into a की पावर 2. आप चाहें तो आप अल्फा मान के आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, जैसे मैं अभी सेकंड मेथड करती आई हूँ। और यू कैन से if alpha is the order of reaction then rate R1 क्या है? R1 है 2.4 इंटू 10⁻⁻4। दिस इज इक्वल टू k इंटू पहली कॉन्सेंट्रेशन है 2 इंटू 10⁻³ की पावर अल्फा एंड R2 है आपका 0.6 इंटू 10⁻⁻4 1 इंटू 10⁻³ की पावर अल्फा। यहां से R1 by R2 will be equal to 2.4 into 10⁻⁻4 is equal to k into अल्फा अपॉन k into अल्फा। ये आपका आ जाएगा 4, ठीक है, कैंसिल होके, और ये आपका k से k कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2 की पावर अल्फा। सो दिस इंप्लाइज 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर अल्फा और अल्फा इज इक्वल टू 2। तो एनी मेथड, ये सेकेंड मेथड है, मैंने वैसे ही कर दिया, आप दोनों में से कोई मेथड भी यूज कर सकते हैं। सो अल्फा की वैल्यू आ गई 2। तो हमारा रेट लॉ इक्वेशन तो आ गया, ठीक है। अब हमें सेकंड क्या निकालना है? रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट हम अपने दोनों वैल्यू से निकालेंगे। फर्स्ट पहले हमारा रेट कांस्टेंट की क्या बन गया? ये बन गया रेट अपॉन ए की पावर 2। सो फर्स्ट वैल्यू के लिए रेट क्या है? पहला रेट है हमारा 2.4 इंटू 10⁻⁻4। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन है 2 इंटू 10⁻⁻3, इसका हुआ स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी 0.6 इंटू 10⁻², 0.6, होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड, 2.4, 1 सेकेंड, हाँ, 0.6 इंटू 10⁻² मोल्स लीटर पर सेकेंड। और सेकेंड जब हम रेट कांस्टेंट यूज करेंगे, जब हम वैल्यू यूज करेंगे तो रेट कांस्टेंट वैल्यू अगेन सेम आनी चाहिए। सेकेंड था 0.6 इंटू 10⁻⁴ और ए की कॉन्सेंट्रेशन थी 1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। तो अगेन ये आ गया 0.6 इंटू 10⁻² पर मोल लीटर्स पर सेकेंड। तो रेट कांस्टेंट ही पूछा था, हमने ये निकाल लिया। अब हम करेंगे आई गेस लास्ट न्यूमेरिकल है, यस, लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस टाइप बेस्ड ऑन इनिशियल रेट मेथड। चलिए, अभी ये कह रहे हैं कि हमने एक एक्सपेरिमेंट, एक रिएक्शन है A+5B+6C गिव्स यू 2 प्रोडक्ट्स 3L प्लस 3M, ठीक है। L एंड M प्रोडक्ट्स है, 3 मोल्स ऑफ L एंड 3 मोल्स ऑफ M मिल रहे हैं
एंड इनके मेन में हमने रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए अंडर द फॉलोइंग कंडीशन निकाला है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ यानी कि जो इनिशियल रेट ये निकाला है, दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए निकालना है अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ए बी एंड सी की ये जो ए नॉट बी नॉट सी नॉट दिखा हुआ है, मतलब ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ये अलग अलग वैल्यूज लेके 4 एक्सपेरिमेंट्स किए और हमने रेट डिटरमिन किया, यानी कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए डिटरमिन किया। हमें एक तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, फिर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है, एंड लास्ट है कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड एल। रिएक्टेंट बी एंड प्रोडक्ट एल का रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है जब ए बी एंड सी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.01 मोलर यानी कि सेम है। अब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पहले ये समझेंगे कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए और रेट ये हम सेम क्यों ले रहे हैं। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि रेट ऑफ, हमने जब पढ़ा था स्टार्टिंग में, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कैसे लिखा जाता है, माइनस डी ए बाय डी टी। ऑल्सो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूं इन टर्म्स ऑफ ए, rate of reaction in terms of A, that will be also minus dA by dt। तो यानी कि this is also rate of, ये जो हमें दिया ये हमारे इस रिएक्शन के रेट भी यही है, रेट ऑफ रिएक्शन भी यही है। सो these are same। तो दैट मीन्स जो ये वैल्यूज है हम रेट के लिए यूज कर सकते हैं, जो हमें ये इनिशियल रेट बोला है जिसको हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बोल रहे हैं, उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन यूज कर सकते हैं कि वो वही आ रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ए जो हमने देखा। अब आती है बात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने की। अगेन आप चाहें तो वही R1 बाय R2, R2 बाय R3, R3 बाय जैसे करके ऐसे कर सकते हैं, R3 बाय R4 एंड अल्फा बीटा गामा मान के ए बी एंड सी के विद रिस्पेक्ट टू रेट निकाल सकते हैं। मैं अपना वही मेथड कर रही हूँ कि कीपिंग, जैसे फॉर एग्जांपल ये है फर्स्ट टू वैल्यूज है, इनमें बी एंड सी की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रख के ए की कॉन्सेंट्रेशन को हाफ किया है, तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन पे इम्पैक्ट देखूंगी। फिर मैं आगे जाऊंगी, फिर मैं देखूंगी कहाँ पे, जैसे यहाँ पे लास्ट टू वैल्यूज में 0.02 ए की रखी है, ठीक है, लेकिन उस केस में मुझे देखना पड़ेगा कि दो कांस्टेंट रखनी चाहिए वैल्यूज, मतलब मुझे दो रिएक्ट, एक्चुअली क्या होगा ना इस केस में, इसमें 3 रिएक्टेंट्स हैं, तो हमें ऐसे एक्सपेरिमेंट ढूंढने हैं जिनमें ऐसे हो कि दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, दो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो और एक की चेंज हो रही हो। जैसे यहाँ था फर्स्ट टू बी एंड सी सेम थे और ये चेंज हो रहे थे, अब मुझे ऐसी ही वैल्यूज ढूंढनी पड़ेंगी। अब मैं ले लेती हूं फॉर एग्जाम्पल ये जैसे वैल्यूज हैं, इसमें मैं जैसे लिखती जा रही हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि मैं कहाँ किसको कांस्टेंट, कौन कौन कांस्टेंट है और क्या चेंज हो रहा है। सो लेट अस फर्स्ट, मैं लिख लेती हूँ पहले क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है जब हम ऐसे ऐसे वैल्यूज देखते हैं, सो समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज। सो लेट मी, ओके व्हाट्स रॉन्ग विद इट, वन सेकेंड मैं स्क्रीन ले आऊँ वापस, ठीक है। तो पहले हम डेटा ले लेते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यूज क्या आ रहा है, हमें दिख रहा है कि B एंड C की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट रखी हुई है, क्या रखी हुई है 0.02, एंड A की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दिया यानी कि हाफ कर दिया, कैसे 0.02 से बना दिया 0.01 यानी कि हाफ कर दिया। हाफ करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इम्पैक्ट आया, 2.08 इंटू 10⁻³ से ये बन गया 1.05 इंटू 10⁻³। ध्यान से देखिए ये भी हाफ हो गया, 2.02 डिवाइडेड बाय 2 क्या बन जाएगा, 2.08 डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा 1.05, तो हाफ हो रहा है। देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ ए, मतलब हाफ करने पे हाफ हो रहा है। अब देखते हैं ए एंड सी को कहाँ कांस्टेंट रखा है, ए एंड सी, ओके ये देखिए ये फर्स्ट ये दी वैल्यूज देखिए ए एंड सी, इसमें 0.02 रखा है ए को, 0.02 रखा है ए को, सी को भी 0.02 रखा है, 0.02 रखा है, लेकिन बी को डबल कर दिया,
तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इम्पैक्ट आया, 1.04 इंटू 10⁻³ से 4.16 इंटू 10⁻³ हो गया। तो लिख लेते हैं इसको, कौन सी वैल्यूज हैं, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वैल्यूज। किसको कांस्टेंट रखा है, ए एंड सी, आई थिंक दे आर, ए एंड सी थे कांस्टेंट है। क्या वैल्यू सी एंड सी की कांस्टेंट, 0.02, यस 0.02, लेकिन बी को चेंज कर दिया है कितना, 0.02 से 0.04, यानी कि डबल कर दिया है। उससे रेट पे क्या इम्पैक्ट आया देख लेते हैं, 1.05 इंटू 10⁻⁻6 सॉरी -3 से ये रेट हो गया है 4.16 इंटू 10⁻³ ध्यान से देखिए ये 4 टाइम्स है, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.16 आ जाएगा। सो दिस इज 4 टाइम्स, डबल करने पे 4 टाइम्स हो रहा है, तो मतलब रेट इज प्रोपोर्शनल टू 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ बी। अब आते हैं जहां पे ए एंड बी को कांस्टेंट रखा हो और सी को चेंज किया हो, तो वो हमारी वैल्यूज हैं फर्स्ट एंड फोर्थ। देखिए ए कांस्टेंट 0.02, बी कांस्टेंट 0.02, जबकि सी को 0.02 से 0.04 किया, जिससे रेट 2.08 से 8.32 इंटू 10⁻³ हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ वैल्यूज किसको कांस्टेंट रखा है, ए एंड बी को कांस्टेंट रखा है, एज इन कितना 0.02 रखा है, राइट। एंड सी को जो है चेंज कर दिया है किस कॉन्सेंट्रेशन से किस पे, 0.02 से 0.04, यानी कि ये डबल कर दिया है, जिससे रेट पे क्या इम्पैक्ट आया है, रेट पे इम्पैक्ट ये आया है कि 2.08 इंटू 10⁻³ से ये हो गया है 8.32 इंटू 10⁻³। अब अगेन अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.08 को, तो ये बन जाएगा 8.32, तो यानी कि ये कितना हो गया 4 टाइम्स। सो डबल करने में 4 टाइम्स हुआ है, देयरफॉर रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू सी की भी 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो बस अब हमें क्या चाहिए था, हमें तो ओवरऑल ऑर्डर चाहिए था, तो हम निकाल लेते हैं। पहले हम रेट लॉ इक्वेशन लिख लेते हैं। रेट लॉ इक्वेशन क्या बन जाएगी, इट विल बी रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी, ए की थी 1, बी की थी 2 एंड सी की थी 2। तो ये तो आ गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये इनिशियल नॉट डाल सकते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के लिए, ठीक है। अब इन्होंने नेक्स्ट क्या पूछा है, इन्होंने हमसे नेक्स्ट पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। तो ए के विद रिस्पेक्ट टू हो गया 1, बी के विद रिस्पेक्ट टू हो गया 2 एंड सी के विद रिस्पेक्ट टू हो गया 2, सी के विद रिस्पेक्ट टू भी हो गया 2। ओ गॉड जस्ट अ सेकेंड, ठीक है 2 ये आ गया। ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया 2 + 2 + 1 5। सो ओवरऑल ऑर्डर इज इक्वल टू 5। एक चीज तो ये होगी। अब व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट तो तीनों के लिए हमें हर केस के लिए चारों केसेस के लिए निकालना पड़ेगा। सो यहां से रेट कांस्टेंट विल बी, ये पूछा था ना हमसे इन्होंने, ये देखिए क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। पहले हम रेट कांस्टेंट निकाल लेते हैं, हमने ऑर्डर निकाल लिया। रेट कांस्टेंट इज के इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन है इससे आ जाएगा ना, इस इक्वेशन से, रेट अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट, आई मीन ए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी का स्क्वायर। आप क्या करेंगे, आप सारे जितने भी है ना ये अपने चारों वैल्यूज, इनको पुट करके पहले फर्स्ट वैल्यू पुट कीजिए। फर्स्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग रेट क्या है, रेट है 2.08 इंटू 10⁻³ ए की कॉन्सेंट्रेशन है 0.02
बी की भी है 0.02 का स्क्वायर एंड सी की भी है 0.02 का स्क्वायर। जब आप सॉल्व करेंगे ये आएगा 13,000, जिसको हम लिख सकते हैं 1.3 इंटू 10⁴ पर मोल स्क्वायर पर मिनट। ठीक है जी, एक तो ये आ गया, ये तो आ गया। अब हम सेकंड वैल्यूज पुट करेंगे, चारों वैल्यू से निकालना होता है, हमें निकाल के दिखाना होता है। 1.04 होता है इसमें रेट, और इसमें वैल्यूज हैं 0.01 इंटू 0.02 का स्क्वायर इंटू 0.02 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे भी आप जब कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 13,000, यानी कि सेम वैल्यू आ जाएगी। मैं बार बार नहीं लिखूंगी इसको, ये सेम आ जाएगी। थर्ड जब करेंगे तो भी आप ऐसे ही पुट करेंगे, 4.16 इंटू 10⁻³ है थर्ड का रेट कांस्टेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट का, एंड 0.02 है तब ए की कॉन्सेंट्रेशन, बी की है 0.04 तो उसका स्क्वायर, एंड इसकी है 0.02 उसका स्क्वायर, यहाँ पे भी आएगा 13,000। ठीक है, एंड इसी तरह से सिमिलरली फोर्थ वैल्यू पुट करेंगे तो रेट कांस्टेंट के विल बी इक्वल टू 8.32 इंटू 10⁻³ है रेट, 0.02 है ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बी की है 0.02 तो इसका स्क्वायर, एंड सी की है 0.04 तो इसका स्क्वायर, यहाँ पे भी आएगा 13,000 यूनिट्स लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आ गया रेट कांस्टेंट। अब बोला इन्होंने कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BnL। पहले तो देखिए रेट इन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BnL होगा क्या? B का तो होगा माइनस dB/dt, एंड L का होगा dL/dt। ठीक है, कब? व्हेन, जब कॉन्सेंट्रेशन ए बी सी की 0.01 है, तो अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें जो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दी हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें रेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेट निकालेंगे। मतलब हमने रेट ला इक्वेशन निकाली थी, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय बी की का स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर। अब हमारे पास ए बी नॉट सी नॉट की वैल्यू है 0.01 एंड आपके पास के की वैल्यू है 1.3 इंटू 10⁴, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए 1.3 इंटू 10⁴, 0.01, 0.01 का स्क्वायर, 0.01 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन इस केस में। ठीक है, ये आ गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन मोल्स पर मिनट। अब आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। नाउ रेट ऑफ चेंज in concentration of B is equal to minus dB/dt। ठीक है, and rate of change in concentration of L is dL/dt। ठीक है, हमें ये निकालना है। अभी हम इस रेट जो हमने निकाला है इससे क्या कैसे निकालेंगे, आपको पता मैंने अभी बताया था, दिस इज ऑल्सो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए विच इज माइनस dA/dt। ठीक है, और एक बात और बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी एन एल क्या होगा? दिस इज रेट, दिस इज दिस, और रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी क्या होगा? इट विल बी, देखिए बी की कितनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म थी आगे, 5, तो इट विल बी 1/5 माइनस 1/5 dB/dt।
and rate of reaction in terms of L will be again, L की कितनी थी 3L coefficient stoichiometric plus 1/3 dl by dt. अब ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, 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 ये भी और ये भी, यानी कि ये तीनों चीजें इक्वल हो गई. ठीक है, मैं एक मिनट, आई नीड वन मोर पेज, सो लेट मी ऐड वन मोर पेज टू दिस. तो मैंने क्या निकाला पिछली स्लाइड में, मैंने ये निकाला कि रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी एन एल एंड रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए मेरे पास है और उसकी वैल्यू भी है मेरे पास. सो आई हैव, ओके, सो देयरफॉर अगर हम यहां से देखें, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, देयरफॉर बिकॉज ये सारे रेट हैं, माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस 1/5 dB by dt is equal to plus 1/3 dl by dt. इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली थी 1.3 into 10 raised to power minus 4. So this dB by dt, this implies dB by dt is equal to minus 1.3 into 10 raised to power minus 4 into 5, यानी कि minus 6.5 into 10 raised to power minus 4 moles per minute. और यही हमें निकालना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में हम साइन नहीं लगाते, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के लगाते हैं. सॉरी, मैं आई कैन नॉट इरेज दिस नाउ, व्हाट कैन आई डू, उसको प्लस ही कर देती हूँ मैं, यहाँ पे साइन नहीं लगाते हम. This is not rate of disappearance of it, this is rate of change in concentration of it, which is plus dB by dt. तो तभी यहाँ पे जो rate of change in concentration of B आएगा वो minus 6.5 into 10 raised to power minus 4 आएगा. Also यहाँ से 1.3 into 10 raised to power minus 4 is equal to 1/3 dl by dt. This implies dl by dt is equal to 3 into 1.3 into 10 raised to power minus 4, which is equal to 3.9 into 10 raised to power minus 4 moles per minute. तो ये आ गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एल, और ये आ गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ B. So these were all numericals based on calculation of calculation of order of reaction by initial rate law method. Now next topic जो होगा मेरा वो यही होगा, order of reaction and rate constant निकालने का, लेकिन that will be based on integrated rate law method.